morning, students. Today we will discuss a very important topic of statistical physics, BSc second year, that is Maxwell-Boltzmann distribution law, that is MB law. So in this we will consider an ideal gas enclosed in a vessel of volume V. Hence total energy U remains constant in the vessel volume V because it is enclosed. So total energy remains constant, and let N is equal to number of molecules of gas which is enclosed in a vessel, and we will divide the total energy U into K intervals, and that is U1, U2 up to UK, and let G1, G2 and GK be the number of cells in the K intervals, and N1, N2 up to NK be the number of particles in the cell G1, G2, GK up to respectively. First we will divide the total energy into K intervals, that is U1, U2 up to UK, and then we will divide this U1, U2, UK into number of cells, that is G1, G2, GK. Then this cell divides into number of particles, that is N1, N2 up to NK of the cell that is your G1, G2 and GK respectively. Now we are interested to find the energy wise distribution of N molecules having total energy U with volume V and in equilibrium state or most probable state. So we have to find the most probable state probability. Okay, so for this you have to remember this thermodynamical probability of macro state, that is N1 up to NK, that is W is equal to N factorial G1 raised to N1, G2 raised to N2, this all is in multiplied up to GK into NK upon N1 factorial, N2 factorial up to NK factorial. So this is your G1 is the number of cells and this is the number of particles. So cells raised to power particles upon number of particles with the factorial N1 up to NK factorial. Okay, so taking log both sides, so we will take W log on both sides. So taking log both sides, log W, and this is log N factorial G1 raised to N1 and G2 raised to N2 up to GK raised to NK upon N1 factorial, N2 factorial up to NK factorial. So log W is equal to log N. अब आपने log फॉर्मूला पढ़ा होगा log M अपॉन N का, so this is log M माइनस log N. so ये ऊपर वाले सभी प्लस हो जाएंगे, नीचे वाले सभी माइनस हो जाएंगे. so this is log N फैक्टोरियल प्लस जो मल्टीप्लाई है जहां पे वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस log G1 रेज टू N1 प्लस G2 रेज टू N2 प्लस अप टू log GK रेज टू NK, और माइनस नीचे वाले सभी माइनस हो जाएंगे, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल अप टू NK फैक्टोरियल. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log का, log M रेज टू N. सो दिस इज इक्वल टू N log M. सो ये आपकी पावर आगे आ जाती है. सो जहां जहां पे भी पावर है ये सारी आगे आ जाएगी. सो log N फैक्टोरियल log W इज इक्वल टू log N फैक्टोरियल प्लस N1 log G1 प्लस N2 log G2 अप टू NK log GK माइनस, अब ये log अंदर चला जाएगा और सभी प्लस हो जाएंगे. log N1 फैक्टोरियल माइनस बाहर कॉमन रहेगा जो यहां से माइनस हुआ है. सो log N1 फैक्टोरियल प्लस N2 फैक्टोरियल अप टू NK log NK फैक्टोरियल. नाउ log W इज इक्वल टू log N फैक्टोरियल. दिस इज ऑल समीशन. सो ये सभी समीशन में है, सो हमें इसमें समीशन साइन लगा देंगे फ्रॉम I1 टू K, 1 से K तक है. सो समीशन का साइन लगा के I1 टू K, एंड दिस इज Ni log Gi माइनस, ये भी सभी समीशन में है, माइनस का साइन यही ऐसे रहा, और यह है log Ni फैक्टोरियल समीशन I1 टू K, 1 टू K में है सभी. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ना आपने स्टर्लिंग फॉर्मूला किया है, दैट इज स्टर्लिंग फॉर्मूला होता क्या है, log N फैक्टोरियल में अगर कोई है तो आपका बन जाएगा N log N माइनस N. सो जहां पे भी log N फैक्टोरियल है वहां पे आप क्या बना दोगे, N log N माइनस N. सो आपने इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन में यूज करना है. सो आपका क्या बन जाएगा, log W, this will become N log N minus N plus this is I1 to K Ni summation I1 to K and Ni log Gi minus summation I1 to K. this will become log N factorial, और ये आपका क्या बन जाएगा, Ni log Ni माइनस Ni. ये आपका फॉर्मूले से हमने दो
डिराइव की है। नो आपके पास इक्वेशन जो आई वो क्या आई, log w इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन समीशन आई वन टू के एन आई लॉग जी आई माइनस समीशन आई वन टू के एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। नाउ अब ये दोनों कॉमन है समीशन का साइन, सो हम समीशन का साइन दूसरी लाइन में खोल देंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे हमने समीशन का साइन खोला, बाकी आगे सेम रहे हैं। जब इसका समीशन का साइन खुलेगा तो ये आपका आ जाएगा एन, ये आपका एन आई इज इक्वल टू एन आ जाएगा। सो ये एन आई इस एन से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव साइन, दिस इज पॉजिटिव साइन, बाकी सब सेम रहा। एंड ये आपकी फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, log w इज इक्वल टू एन लॉग एन प्लस समीशन आई वन टू के एन आई लॉग जी आई माइनस समीशन वन टू के एन आई लॉग एन आई, बिकॉज दिस एन कैंसल, जो आपका ये एन था और ये एन था ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से। सो अब हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। जब हमने डिफरेंशिएट किया इसको, ये बन जाएगा डी लॉग डब्ल्यू, दिस इज कांस्टेंट, एन लॉग एन आपका कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। सो इसका आ जाएगा समीशन आई वन टू के का, दिस इज डी एन आई लॉग जी आई, ठीक है। और इसका आ जाएगा समीशन एन आई लॉग एन आई का समीशन आपने फर्स्ट और सेकंड से करना है, पहले लॉग एन आई डी एन आई आ जाएगा, फिर प्लस एन आई का हम ऐसे सेम रखेंगे और इसका आ जाएगा वन बाई एन आई डी एन आई। सो एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास आ जाएगा डी एन आई और समीशन हमने खोल देना है। समीशन जब खोला तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग डी डब्ल्यू डी लॉग डब्ल्यू समीशन आई वन टू के डी एन आई लॉग जी आई माइनस समीशन इज कॉमन, सो हम इसको खोल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग एन आई डी एन आई और प्लस माइनस माइनस समीशन आई वन टू के डी एन आई। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ आपको पता है एन आई इज इक्वल टू एन विच इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, एंड जब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी आपका जीरो आएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्विलिब्रियम और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। सो इसमें डी डब्ल्यू आपका जीरो हो जाएगा और डी लॉग डब्ल्यू आपका जीरो हो जाएगा। जब आप डी लॉग डब्ल्यू ये जीरो हो जाएगा तो इसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे, सो आ जाएगा, बाकी वैसे रहेगी इक्वेशन डी एन आई लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई डी एन आई, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो ये आपकी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और डी लॉग डब्ल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जीरो होता है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी दिस वन एंड दिस वन बिकम जीरो। सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी यूज दिस फोर्थ and this fifth equation in third. So this will become, आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन आई वन टू के डी एन आई लॉग जी आई माइनस आई वन टू के लॉग एन आई डी एन आई। नाउ वी विल टेक समीशन कॉमन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर समीशन और डी एन आई हमने कॉमन ले लिया, समीशन एंड डी एन आई दोनों में कॉमन है, सो ये हमने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई। अब हम फोर्थ जो इक्वेशन है आप में, ये जो आपकी समीशन की इक्वेशन आई इसमें हम अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी सेवंथ इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है कि एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, और इसमें इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी को एन आई यू आई की समीशन को, तो आपके पास आ जाएगी यू आई डी एन आई और एन आई डी यू आई इज इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट रहती है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा इस साइड, ओके। सो जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा आपके पास समीशन आई वन टू के यू आई डी एन आई प्लस एन आई यू डी यू आई इज इक्वल टू जीरो। सो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, हमने इसका डिफरेंशिएट किया है डी एन आई का, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट नहीं किया, ये पहले डिफरेंशिएट हुआ इसके साथ हमने अल्फा मल्टीप्लाई किया है, ये सेवंथ इक्वेशन बन जाएगी। और ये हमारी डिफरेंशिएट करके इसमें हम बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी एट्थ इक्वेशन बन जाएगी। बीटा मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, एन यू आई डी एन आई के साथ हम बोथ साइड्स बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। और सेवंथ और एट्थ इक्वेशन को हमने सिक्स्थ इक्वेशन में पुट करना है, दिस इक्वेशन में सेवंथ एंड एट्थ एंड सेवंथ इक्वेशन पुट इन सिक्स्थ इक्वेशन, बीटा यू आई डी आई इज इक्वल टू जीरो। इसमें इसको और इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन एट्थ एंड सेवंथ फ्रॉम सिक्स्थ। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सेवंथ एंड एट्थ इक्वेशन फ्रॉम सिक्स्थ, सो ये आ जाएगा समीशन आई फ्रॉम आई वन टू के लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई डी एन आई समीशन आई वन टू के अल्फा डी एन आई माइनस बीटा यू आई डी एन आई। ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन।
सो ये आपके पास m आ जाएगा, ये n आ जाएगा। सो ये m अपॉन n बन जाएगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा यू आई, दिस इज बीटा यू आई। ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, डी एन आई आपके पास और समीशन आपके पास कॉमन आ जाएगा। डी एन आई और समीशन जब आपने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा m अपॉन n और ये आ जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा माइनस बीटा यू आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये समीशन आपकी 0 हो जाएगी इधर। तो आपके पास सिंपल ये इक्वेशन बची और इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये अल्फा और बीटा यू आई को हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई और जी आई अपॉन एन आई ऐसे रहेगा। तो ये लॉग जब उधर जाएगा तो ये ई की पावर में चला जाएगा, देन लॉग विल कम टू विल गो टू दैट साइड। सो ये आपके पास बन जाएगा ई अल्फा प्लस बीटा यू आई। सो जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस बीटा यू आई। एंड ये आपके पास जब हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका एन आई अपॉन जी आई, तो ये माइनस की बन जाएंगी ऊपर। सो दिस विल बिकम माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई और एन आई और जी आई जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जी आई इधर और एन आई में से ये पावर माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हमने नीचे ले गए। सो दिस इज एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई अल्फा प्लस बीटा यू आई। दिस इज योर MB energy distribution law. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel for more updates.